بریک کے بعد خوشامدید بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری شجاعت حسین نے پرویز الہی کو راضی کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سربراہ کافلی کی کیمپ جیل میں چودھری پرویز الہی سے ایک دن میں 2 ملاقاتیں، دوسری بیٹھک 1 to 1 ہوئی۔ چودھری شجاعت نے کیمپ جیل پہنچ کر چودھری پرویز الہی کو پارٹی میں واپسی کا مشورہ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چودھری پرویز الہی نے اپنا پرانا موقف دہرا دیا، جس پر چودھری شجاعت نے کہا مزید سوچ لیں پھر ملتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی دوبارہ سوچنے کے مشورے پر خاموش رہے۔ پہلی ملاقات میں چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی موجود تھے۔ کاف لیگ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو واپس لانے کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چودھری پرویز الہی کا آج طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے امریکہ کے ذریعے IMF پروگرام رکوانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا الزام، کہا اس مقصد کے لیے امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پروپیگنڈا ناکام ہوا اور پاکستان سرخرو ہو گیا۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ پی ٹی آئی اور پورا جو گروہ ہے اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے جو سر توڑ کوششیں کی وہ ساری ناکام ہو گئیں۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کے IMF کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی۔ IMF کے ساتھ پروگرام ہوا ہے، اس سے عوام کو یہ فائدہ ملے گا کہ اس IMF کے پروگرام کے بعد سب سے پہلا جو اثر پڑے گا وہ پاکستان کے روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ نواز شریف صاحب عنقریب پاکستان آئیں گے اور وہ اگلے الیکشن میں آ کے اپنی پارٹی کی مہم بھی چلائیں گے۔ پی ڈی ایم حکومت معاشی ترقی کی شرح 6% سے منفی پر لے آئی۔ پی ٹی آئی رہنما حماد حسن نے ٹویٹر پر لکھا، مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ کی واپسی ہوئی، صنعت تباہ ہو گئی۔ ان سے غیر جمہوری سازشوں اور جبر کے سوا کوئی امید نہیں۔ یہ لوگ عوام میں نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی امداد نہیں تجارت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپانی سرمایہ کاری پاکستان لانے کی کوششیں۔ وزیر خارجہ جاپانی وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے بھی ملیں گے۔ بلاول بھٹو کی جاپان کی اہم کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ بلاول نے جائکا اور جیٹرو کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ اس سے پہلے پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات میں بلاول نے کہا، پاکستان کو معمر افراد والے ملکوں سے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کو جاپان میں 40 لاکھ کی گنجائش کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ جاپان کی حکومت کی دعوت پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر ٹوکیو میں ہیں۔ دورہ جاپان میں بلاول زرداری کی چھوٹی بہن آصفہ زرداری بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ خارجہ پالیسی وہ ٹریڈ اوور ایڈ کا جو فلسفہ ہے اس پہ ہم فوکس کرتے آ رہے ہیں، اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی ہے۔ پاکستان میں IT سیکٹر میں بہت ہی پوٹینشیل ہے۔ ان ممالک جہاں ایجنگ پاپولیشن ہے ان کے ساتھ پاکستان کا جہاں ہمارا یوتھ کا پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت ہے۔ جاپان میں کافی گنجائش ہے، 4 ملین کا ایک اسپیس ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو یہ موقع ملے کہ اس اسپیس کا فائدہ لیں۔ حافظ نعیم نے بلاول بھٹو کی وزیر اعظم نہ بننے کی پیشگوئی کر دی۔ کہا، نلکے میں پانی آتا نہیں اور بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ کراچی کی میئرشپ چھین کر پروجیکٹ بلاول ختم کر دیا گیا۔ جہاز لینڈ ہونے سے پہلے ہی کریش ہو گیا۔ اب بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پیپلز پارٹی کو معلوم ہونا چاہیے تمہارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے۔ وزیر اعظم بنائیں گے بلاول کو۔ ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے، ٹینکر میں آتا ہے، نلکے میں آتا نہیں ہے۔ وزیر اعظم بنائیں گے۔ کراچی کا میئر چھین کر اپنے ہاتھوں یہ پروجیکٹ بلاول کرش کر دیا ہے، ٹیک آف کے ساتھ ہی لینڈ ہو گیا۔ اب نہیں بن سکتا بلاول وزیر اعظم۔ ہمارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے۔ پورے سندھ کو انہوں نے دھاڑیالوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آپریشنوں کے نام پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ دھاڑیالوں کو لا کر بٹھا دیتے۔ زمینوں پہ قبضہ کر کے جو نظام چل رہا ہے سسٹم کے نام سے، وہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ سینٹ میں لوگوں کو خریدنے میں استعمال کر مزاحمت کریں گے، پرامن مزاحمت، جمہوری طریقے سے جدوجہد کریں گے، ہمارے سارے منتخب لوگ کام کریں گے۔ میئرشپ کا انتخاب ہارنے کے بعد حافظ نعیم نے طوطا فال کا کام شروع کر دیا ہے۔ کڑوے کریلے کھا کر زہریلی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ پی پی رہنما سید ناصر حسین شاہ کا حافظ نعیم کے بیان پر رد عمل، کہا، طوطے نے میئر کی طرح بلاول سے متعلق فال بھی غلط نکال لیا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے اور ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا۔ مرتضی وہاب بولے، نعیم بھائی بس اب چھڈو، جو ہونا تھا ہو گیا، شیروانی 4 سال بعد پہن لینا،
अभी पैंट शर्ट पर गुजारा करें। 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है। कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकालते हैं। उनके हाथ में छुरियां थी, चाकू थे और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की ताकि गंद को मजीद फैलाया जा सके। तो हमने फिर पुलिस की मदद ली। 115 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया। 91 लोग थे जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने गिरफ्तार किया। कुछ लोग थे जो कचरे के साथ खड़े होकर उन्होंने सेल्फी खिंचाई ताकि मजाक उड़ा सके। एक उनकी वीडियो है जिसमें वो तारीफ करें कि देखो ये होता है इनकलाब, कि हमने सोशल मीडिया पे चीज चलाई और साफ हो गया। अगला चैलेंज इंशाल्लाह जो बारिशों का है उसमें भी आप इंतजामिया को देखेंगे, बोरियां निकाल रही होगी, पत्थर निकाल रही होगी। नहीं भाई बस छोड़ो, जो होना था हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी, जब तक पैंट शर्ट को गुजारा किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुर्मत कुरान और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रेड लाइन है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। मुसलमानों का गुस्ताखों को दो टोक पैगाम। स्वीडन में कुरान अजीम की बेहुरमती के खिलाफ मिलत इस्लामिया सरापा एहतजाज। इंडोनेशिया में कुरान पाक थामे अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में एक शहरी ने स्वीडिश सिफारतखाने के बाहर कलाम इलाही की तिलावत करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इराक में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने कुरान पाक चूम कर अपनी अकीदत का इजहार किया। पाकिस्तान में लाहौर, जैकबाबाद और कोहाट में मुजाहरे हुए। ईरान ने स्वीडन में नया सफी तैनात करने से इनकार कर दिया। OIC के खुसूसी इजलास में 57 ममालिक ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक किया। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि कुरान पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानून को हरकत में लाया जाए। आलम इस्लाम के एहतजाज और भरपूर रद्द अमल के बाद स्वीडन हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी फेल करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारतखाने की जानिब से ट्विटर पर अपनी हुकूमत का वजाहती बयान शेयर किया गया, जिसपे कहा गया कि स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को मुस्तरद करती है। यह इनफरादी वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के हाथों 17 साला नौजवान की मौत पर फ्रांस में हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद ने मुख्तलिफ शहरों की ईंट से ईंट बजा डाली। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेरिस के नवाही इलाके के मेयर के घर को जला डाला। खबर है बलूचिस्तान से, जहां पेशेरानी के इलाके दानसर में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 3 अहलकार शहीद हो गए। SP इरफान अली के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब किया गया। 3 पुलिस अहलकार सब इंस्पेक्टर बहादुर खान, सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही बाज खान शहीद हो गए। वजीर आला बलूचिस्तान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कौम मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस अहलकारों और शहरियों पर हमलों में मतलूब थे। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द 11 अप्रैल 2022 को कराची हमले में भी मतलूब थे। हमले में 5 पुलिस अहलकार शहीद हुए थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर वालों को तो अब कम कीमत सब्जियां खाने को मिल जाएंगी, लेकिन कराची वाले कहां जाएंगे, जहां डेयरी फार्मर्स ने मनमानी करते हुए दूध की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। वैसे आवाम पे इतना बोझ है, मजीद बोझ दूध वालों ने बढ़ा दिया। ईद कुर्बा पर लाहौर के सब्जी फरोशों ने भी शहरियों की जेबों से खूब कुर्बानी ली। ईद सीजन में कमाई के बाद सब्जियों की कीमतें कम कर दी और ईद पर महंगाई का मलबा अफगानिस्तान से आने वाली फसल पर डाल दिया। ये जो करीब वाले इलाके हैं उनका आ रहा था 40 रुपए 30 रुपए बिक रहा था, अभी आ रहा है काबुल वाला। इनका रेंट होता है, कुछ मजदूरियाँ होती हैं, कुछ पैकिंग का खर्चा होता है, कुछ ईद की खुशियाँ आ गई उसकी वजह से खरीदारी बढ़ जाती है। आस्ता आस्ता ये 100 पे आएगा, 80 पे आएगा। त्योहार आए या जाए, कराची के डेयरी फार्म्स पर कोई असर नहीं। दूध की कीमत 210 से बढ़ाकर 230 रुपए लीटर कर दी। चाय कैसे बनाएं, बच्चों को क्या पिलाएं, शहरी कहते हैं हम कहाँ जाएं। एक स्टॉक के हिसाब से अपने पास दूध रखते हैं, 2 दिन 1 दिन का। आप इनसे लेना छोड़ दो, फ्री में देंगे। वैसे आवाम पे इतना बोझ है, मजीद बोझ दूध वालों ने बढ़ा दिया। हालात ऐसे चल रहे हैं कि कोई एक पाव भी नहीं
दूध के सरकारी नर्ख 180 रुपए है। इंतजामिया अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम है। मनमानी करने वाले डेयरी फार्म्स ने इंतजामिया के अंदाजों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं दूध की पैदावारी लागत का तखमिया 222 रुपए लीटर लगाया गया, जो दरअसल 242 रुपए लीटर था। मसला जो भी हो, पिस गरीब आवाम रहे हैं। ईद के चौथे रोज खवातीन का घरों में नाश्ता बनाने से इनकार। कराची और लाहौर में नाश्ता पॉइंट्स पर रश लगा रहा। लाहौरियों ने लस्सी से गर्मी भगाई, हलवा पूरी से भूख मिटाई। कराची में भी हलवा पूरी की शामत आई। थकावट थी और भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, और अब जब ये नाश्ता किया ना तो अब सुकून आ रहा है, और लस्सी पी के अब थोड़ी सी नींद आ रही है। नान कुलचा और पाई खाने के बाद लस्सी पिया तो नींद भी आ रही है, लेकिन सोना नहीं। निहारी बोंग पाए ये खा खा के बंदा ना जरा टेस्ट चेंज करना चाहता है। सदीक देसी हलवा की जो पूड़ी है, इनका हमने इंतखाब किया कि यार आज यहाँ नाश्ता किया जाए। ईद के दिन चल रहे हैं, ईद अभी खत्म नहीं हुई, लास्ट डे है, तो संडे को एंजॉय करना था, तो सुबह ही सुबह नाश्ते के लिए आए। मटन खाकर थक गए थे घर पे, तो सोचा कि आज ये एंजॉय किया जाए। और जी संडे को फंडे बनाने के लिए पेशावर के शहरियों ने चिड़ियाघर को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। बंदर, शेर, भालू, परिंदे देखकर बच्चे खुश हो रहे हैं। शहजाद महमूद की रिपोर्ट। ईद की खुशियां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब बारी है पेशावर के चिड़ियाघर की सैर की। बड़ा मजा आ रहा है। चिड़ियाघर की सैर के लिए किसी ने पकड़ी जू सफारी। बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों ने चिड़ियाघर में तोते हाथों पर बिठाए, इन यादगार लम्हात को महफूज बनाया। कैमरामैन वाहिद खान, कैमरा शहजाद महमूद, AR1 न्यूज़ पेशावर। ईद की छुट्टियों के आखिरी दिन भी मलका कौसार मरी सयाहों से भरी रही। वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ओवैसिल हक। अज़हा का चौथा रोज है और मरी में ये सिचुएशन जारी है कि भरा हुआ टूरिस्ट है और हर जगह आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आएंगे। इस वक्त हम माल रोड के ऊपर मौजूद हैं। हम चनियोट से आए हैं और बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट इधर आए हुए हैं और हमने बहुत खूब इंजॉय किया है। हम रावलपिंडी से आए हैं, माशाल्लाह बड़ा इंजॉय किया हमने, और फ्रेंड्स के साथ आए हैं। किधर से आए हो, कैसा फील कर रहे हो मरी आके? हम लाहौर से आए हैं, तो बड़ा प्यारा लग रहा है माहौल है। मरी के मौसम के क्या ही कहने, टूरिस्ट ने यहाँ पे 4 चांद लगाए हुए हैं। हल्की सी रात के औकात में सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन दिन को मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात का अहवाल सामने आया है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को खानदान में वापसी की दरख्वास्त की। परवेज इलाही की जानिब से क्या मौकफ सामने आया है, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। ख्वाजा नसीर बताएगा, एक दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें रही। कुछ पता चल सका कि परवेज इलाही की जानिब से क्या मौकफ है? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इस मुलाकात के अंदर चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादे जो कि मुलाकात के लिए पहुंचे थे, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को ये ऑफर दी है कि आपको खानदान की सतह पर वेलकम बैक किया जाएगा, आपको खानदान की सतह पर पूरी इज्जत और तकरीम दी जाएगी, लेकिन सियासत अपनी अपनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आपको दोबारा काफ लीग में वही पोजीशन और वही मुकाम दोबारा दे दिया जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली के एक एल्डर होने की हैसियत से आपके लिए बातचीत जो मुमकिन क्वार्टर्स है वहां तक की जाएगी और आपको मुकम्मल रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जबकि जराये का ये कहना है, इंतहाई बावसूख जराये का ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही के मौकफ में इस मुलाकात के दरमियान लचक जो है वो देखने में आई है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने अपने साहबजादे चौधरी मोनस इलाही के साथ मशावरत के हवाले से बातचीत करने को भी कहा है कि मैं अपने साहबजादे मोनस इलाही हैं, उनसे बातचीत करने के बाद कोई हतमी फैसला कर सकूंगा। चौधरी मोनस इलाही मुल्क से बाहर है और इस हवाले से जो भी पैगाम है ये दोबारा चौधरी फैमिली के घर में वापस गया है, और चौधरी परवेज इलाही के जो दीगर अहबाब इस वक्त उनके साथ है वो मोनस इलाही से मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही को इस सारी सूरत से आगाह करेंगे। यानी कि एक मरतबा फिर जो चौधरी फैमिली है उन्होंने वाजे किया है कि चौधरी परवेज इलाही। अच्छा, तो ख्वाजा नसीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि परवेज इलाही की जानिब से थोड़ी सी लचक दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मोनस इलाही से वो मुशावरत के बाद बताएंगे, तो क्या ये समझा जा सकता है कि मोनस इलाही की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो उस पर डटे हुए हैं कि वो उसी जमात में रहेंगे जिसमें वो हैं? बेसिकली चौधरी परवेज इलाही का तहरीके इंसाफ में जाने का फैसला, पंजाब असेंबली की तहलील करने का फैसला और चौधरी परवेज इलाही का तहरीके इंसाफ का सदर बनने का फैसला, इन तमाम तर फैसलों के पीछे जो एक जिसे कहते हैं बड़ी फोर्स जो थी, पॉलिटिकल फोर्स जो थी, वो चौधरी मोनस इलाही थे।
चौधरी मोहम्मद सलाही इस बात से कन्विंस है कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल है और हमें तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए। लेकिन आज की इस मुलाकात में भी चौधरी परवेज इलाही, जो कि इस वक्त 76 ईयर से ज्यादा उम्र के हैं और मुसलसल इस वक्त एक कैद के अंदर है, उनके मौक़िफ़ में एक लचक का एक सामने इजहार किया गया और उस लचक में ये बताया गया कि वो शायद इस मामले में पीछे हट सकते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने साहबजादे से बात करने के बाद जिस तरह के मोहम्मद सलाही बताया जा रहा है कि यूरोप में है इस वक्त, तो क्या इस हवाले से उनसे राब्ता किया गया मुशावरत के लिए? जी ये तमाम तर पैगाम जो है, जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने पैगाम दिया है, ये पैगाम अब चौधरी परवेज इलाही के फैमिली मेंबरान के पास भी पहुंच चुका है। और जो वो चौधरी परवेज इलाही के जो फैमिली मेंबरान हैं जो कि बाहर हैं, वो बराह रास्त मोहम्मद सलाही से राब्ता करके उनसे तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। मोहम्मद सलाही से राब्ता करके उनसे तमाम तर सूरत हाल डिस्कस की जाएगी, फिर मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर आपका। और कराची में साइंसी तजुर्बात को आम अंदाज में समझाने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जिसकी सैर करवा रहे हैं अली हसन। ये है साइंस की दुनिया, जहां देखने को मिलेंगे ऐसे साइंसी मॉडल्स जिन पे होने वाली तहकीक ने दुनिया की तारीख बदल डाली। मैग्नीफाई साइंस सेंटर में छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ों को अमली तजुर्बात का मौका दिया गया है। मैग्नीफाई साइंस सेंटर का जो कोर पर्पस है वो यही है कि आप बच्चों को एजुकेट करें, उनके साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन और लर्निंग दे, लेकिन इन अ फन वे, इनफॉर्मल वे। फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो या पे ह्यूमन एनाटॉमी, मैग्नेटिक और साउंड वेव्स के कवानीन को भी तफरीही अंदाज में सिखाने की कोशिश की जाती है। साल 2005 के हौलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियों के हवाले से भी एक सेक्शन मौजूद है, जहां अर्थक्वेक सिमुलेटर का तजुर्बा लोगों के लिए मुनफरिद साबित होता है। किताबों की दुनिया से निकलकर तलबा और तालिबात भी अमली जिंदगी में अपने आप को तस्वुर करते हैं। हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सिर्फ किताबों के न घिरे हुए होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ थिंग है, जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, चीजें फन चीजें हैं, आप सीखते भी हैं। साइंसी मज़ामीन से बच्चों की बोरियत अब दूर हो जाएगी। जदीद दौर में सिखाने का मुनफरिद अंदाज यकीनन तालिब इल्मों के जहन को मजीद कुशादा कर देगा। खेल खेल में अगर सीखने को मिल जाए तो ये बात स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि जो साइंस की बातें हम किताबों में पढ़ा करते थे, प्रैक्टिकली तौर पे उसे फील करने का एक अलग तजुर्बा आता है। कैमरामैन मुस्तंज़र हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। और क्या आपके इल्म में है कि कराची के साहिल पर एक जंगल भी है? हमारी नुमाइंदा इशरत खान हमें एक ऐसे जंगल की सैर करवा रही हैं। जैसे कंक्रीट के शहर में कभी आपने हरा भरा जंगल और खूबसूरत झील देखी है जिस पर आबी परिंदे बैठे हों? आइए आज हम आपको एक हरा भरा जंगल दिखाते हैं। अगर आप कराची की साहिली पट्टी क्लिफ्टन बीच जाएं तो साथ ही आपको हरा भरा जंगल और आबी परिंदे नजर आएंगे। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कराची वालों के लिए एक हसीन काविश है। तो 2021 के जनवरी में हमने ये शुरू किया था। उस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब माहौलियात के एडवाइजर थे तो चीफ मिनिस्टर के। 200 से जायद एकड़ पर मुश्तमिल इस जंगल में 7 लाख पौधे लगाए गए। हवा के दोष पर लहराते पेड़ और पौधे, चारों जानिब सब्जा ही सब्जा और कई जंगली हयात भी यहाँ मौजूद हैं। ग्रासेस हैं, क्रीपर्स हैं, हर्ब्स हैं, सब्जियां हमने अलग लगाई हैं। मोस्टली सब्जियां हम विंटर पीरियड में लगाते हैं और हर तरह की सब्जी हमने लगाई है और यहाँ सक्सेसफुल होती है। 2.5 साल कबल बनाया गया ये जंगल अब वसाइल से महरूम और मसाइल से भरपूर है। ये सस्टेन तब करेगा जब इसमें प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी और सरकार इसमें कंटिन्यूस हेल्प करे। अगर नहीं करेंगे तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। दरख्तों की कमी से मौसम की शिद्दत और आलूदगी के वार सहते कराची वालों के लिए क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। और जनाब, जैसे ही कराची में दोबारा से गर्मी का आगाज हुआ है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो शहरी जो हैं वो गोला गंडा खाने के लिए पहुंचे हैं डोराजी। डोराजी में मिलते हैं बड़े ही रंग बिरंगे से और मजेदार से गोला गंडे। और डोराजी में इस वक्त हमारे नुमाइंदे चांद नवाब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। चांद नवाब, बताएगा, यकीनी तौर पर गर्मी बहुत शदीद है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची होगी, किस तरह के मजेदार से गोला गंडा यहाँ पर मिलता है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ईद का जो गोश्त खाया था, चटपटा मसाले, अब उसको हजम भी तो करना है। गर्मी भी बहुत है शहर में, मेरे फेस से लगा सकता है कितनी गर्मी में मौजूद हूँ डोराजी पे, जहाँ रंग बिरंगी गोला गंडा बनता है बर्फ से, मशीन से, और इसमें जो है
शरबत डाले जाते हैं, पिस्ता बादाम कोमेल है, गोला, इसमें तमाम कलर्स के गोला गंडा, बड़े खूबसूरत गोले गंडे बनाए जाते हैं। और यहाँ फैमिली मौजूद है और ये बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ गोला गंडा खाने। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा गोला गंडा खाने आए जी आप आज इसमें? नहीं भाई, कौन सा भी, बस गोला गंडा खाने आए। जी, इनका कहना है कि गोला गंडा खाने आए। ये देखे रंग बिरंगी ठेले हैं यहाँ पे और इतना रश है। अच्छा चांद नवाब, इस वक्त आप चूंकि ढोरा जी पर मौजूद है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के गोला गंडे मिलते हैं, तो बताइएगा किस किस किस्म के यहाँ पर गोला गंडे मिलते हैं, क्या क्या इकसाम है, उसमें क्या क्या डलता है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले बर्फ को जो है वो ग्राइंड किया जाता है बिल्कुल बारीक, उसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होता है, पाइनएप्पल होता है, इसमें जो है जेल डाली जाती है, इसमें पिस्ते बादाम डाले जाते हैं। जिस तरह का आपको गोला गंडा चाहिए वो धोरा जी पे मिलेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा गोला गंडा नहीं मिलता। जो भी यहाँ पर कराची आता है धोरा जी पे गोला गंडे खाने ज़रूर आता है। कलरफुल गोला गंडा होता है, बर्फ़ को इतना खूबसूरत बनाया जाता है डिज़ाइन से कि देखने वाले का कहा जाता है कि एक और प्याला खा लिया जाए गोला गंडे का, इतना लजीज होता है। जी बिल्कुल, गोला गंडे वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बनाते हैं? सर बर्फ के साथ सादा है, पाइनएप्पल जेली वाला है, ड्राई फ्रूट वाला है, आइसक्रीम वाला है, मटका गोला गंडा है। जी सर, अभी ये गोला बना रहे हैं, आप देखें जरा। गोला बना रहे हैं, इनका कहना है सादा होता है, पाइनएप्पल होता है, हर तरह के गोले गंडे ये बनाते हैं। और ये दिखा जा सकता है कैमरामैन याकूब कि किस तरह कलर डाले जा रहे हैं गोले गंडे के बर्फ के ऊपर। नवाब, जिस तरह के बताया जा रहा है पाइनएप्पल का गोला गंडा है और ड्राई फ्रूट डाला जाता है, तो ये तो बड़े महंगे होते हैं, तो क्या कीमतें हैं इन गोला गंडों की? जी बिल्कुल, इनके कितने प्राइस होते हैं और कितने का गोला गंडा होता है? पाइनएप्पल वाला 300 रुपये का होता है, ड्राई फ्रूट वाला 450 का होता है, आइसक्रीम वाला 600 रुपये का होता है और मटका गोला 800 रुपये का होता है। मटका गोला जो है वो स्पेशल होता है, वो 800 तो चांद नवाब, ये मटका गोला जो सबसे महंगा है, इसमें क्या होता है? क्या ये मटके में डालकर दिया जाता है? मटका गोला में क्या क्या होता है भाई, आप बताएं जरा। मटका गोला में ड्राई फ्रूट होता है, आइसक्रीम होता है, बादाम पिस्ते होते हैं और बहुत सारी चीजें डलती है उसके अंदर। बिल्कुल, आज बताया जैसे मटका गोला में बहुत सारी चीजें डलती हैं उस मटके के अंदर। ये दिलचस्प सी जगह है, जब भी आपको गर्मी लगे तो आप इस पॉइंट पे जरूर जाइए और जरूर गोला गंडा खाइए। बहुत शुक्रिया चांद नवाब आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों में शामिल है। एशिया कप मेगा इवेंट की तैयारी के लिए अहम है। उम्मीद है कि कौमी टीम ये वर्ल्ड कप जीतेगी। एशिया में हो रहा है और किसी एशिया टीम को ही जीतना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जरूर ये वर्ल्ड कप जीतेगी और मैं ये देख रहा हूँ कि टॉप 4 में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीमें होंगी। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रैक्टिस मैचेज हैं, प्रैक्टिस मैचेज आप किसी भी टीम से खेलें और कंडीशन एक जैसी होगी सब टीमों के लिए है कि पाकिस्तान जितने ज़्यादा मैचेस खेल लेगा वर्ल्ड कप से पहले उतना पाकिस्तान का एडवांटेज होगा अगर वहीं पर हम ज़्यादा मैचेस खेल लें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।